Hello dear students, my name is Dr. Shivani Gupta and welcome to my channel Indian Maths. So in this video we are going to discuss about trigonometric functions, which is chapter 3 of class 11 mathematics. So in today's video we are going to discuss about angle, units of measurement of angle and various questions regarding to these topic. So let's start today's video. So in trigonometric functions, in earlier classes you have already studied about trigonometric identities and trigonometric ratios. Now in this chapter we are going to learn about trigonometric functions. So first of all, the basic term which we are going to understand is angle. So what basically a angle is? So angle में हम क्या करते हैं? We take a initial point. ठीक है, this initial point, we call this initial point as vertex, and we draw a ray from this point which is called the starting ray, and we take another ray which is called terminating ray. So the revolution of this terminating ray from this starting point or from this starting ray is termed as angle. If we denote this by theta, then this theta is called angle. So this angle is what? This is a rotation of this terminating ray from a fixed point. So if we rotate this terminating ray, or if we move this terminating ray in anti-clockwise direction, ठीक है, this is moving in anti-clockwise direction, then this angle is positive. And if we take, consider like this is our terminating ray. So this is terminating ray and this is my starting ray, and if this terminating ray is moving in clockwise direction, that means like this, then this theta angle is negative. ठीक है, if this is my starting ray and the terminating ray starts moving from here, and from moving to here it comes again back to this ray. That means if I name this OA, then this OA is also terminating ray and this OA is also starting ray. यानी terminating भी यही है, starting भी यही है. terminating ray मूव करके वापस इस पर आ गई है. अगर मैं इसको OB कह दूं, इसको मैंने OA बोला है, ये OB, ये OA, तो इस सिचुएशन में क्या हो गया कि OB जो रे है वो पूरा ऐसे घूम के वापस आ गई है. तो ये मेरा क्या कहलाता है? वन कंप्लीट रेवोल्यूशन. ठीक है, तो एक जो हमारा पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया, दैट इज कॉल्ड वन कंप्लीट रेवोल्यूशन. और ये वन कंप्लीट रेवोल्यूशन किसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो दिस इज द बेसिक ऑफ अ angle. Now we have two units to measure the angle. Now we discuss about the units. So first unit is simple, which I have already mentioned, which is degree, and the other unit is radian. So we have two units of measurement. First one is degree and another one is radian. ठीक है, नाउ हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ ऑफ देम. सो डिग्री क्या होता है? अभी हमने देखा था कि अगर मेरी टर्मिनेटिंग रे है वो पूरा एक सर्कल लगाकर आ रही है वर्टेक्स के अराउंड, पूरा उसने एक राउंड कंप्लीट करा है, तो दैट इज कॉल्ड वन रेवोल्यूशन. और वो वन रेवोल्यूशन जो है वो 360 डिग्री के बराबर होता है. तो डिग्री क्या होता है बेसिकली? तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/360 ऑफ द रेवोल्यूशन. यानी जो वो पूरा एक रेवोल्यूशन था उसका अगर मैं 1/360 पार्ट निकालूं तो वो मेरा क्या हो जाएगा? 1 डिग्री हो जाएगा. मतलब पूरा मेरा रेवोल्यूशन 360 डिग्री था, अगर मैं उसका 1/360 कर लूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? 1 डिग्री मिल जाएगा. ठीक है, तो डिग्री को हम कैसे डिनोट करते हैं? अपर केस में एक स्मॉल सर्कल बना के. ऑल्सो दिस 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड. सो ये जो हमने सिंगल लाइन बनाई है ये हमारा सिंबल है मिनट्स का, और ये जो डबल लाइन है ये सिंबल होता है सेकेंड का.
तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/360 ऑफ द रेवोल्यूशन, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। सिमिलरली हम किसी भी एंगल को रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो रेडियन में हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर मैं एक सर्कल कंसीडर कर लूँ ऑफ 1 यूनिट रेडियस, ठीक है, इसकी रेडियस 1 यूनिट है, और यहाँ पे अगर मैं एक आर्क कंसीडर करूँ, लेट्स से दिस ए बी इज द आर्क, और इस आर्क की भी जो लेंथ है ये भी कैसी है, 1 यूनिट है। तो ये जो ए बी आर्क है, ये जो सेंटर पे जो एंगल फॉर्म करेगी, दिस इज कॉल्ड 1 रेडियन, ठीक है। तो एंगल फॉर्म एट सेंटर इन ऑफ अ 1 यूनिट रेडियस बाय अ 1 यूनिट आर्क is termed as 1 radian. So this is my 1 radian. We all know that the circumference of a circle is 2 pi r, ठीक है। सर्कमफ्रेंस होती है हमारे सर्कल की 2 pi r। अब ये सर्कल कैसा है, ऑफ यूनिट रेडियस, तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस कितनी हो जाएगी सर्कल की, 2 pi। तो ये जो पूरा सर्कमफ्रेंस है, डेट मीन्स अगर मैं यहाँ से बात करूँ ए से लेके ये पूरा वापस आप इस पॉइंट पर आ जाओगे, तो ये पूरा जो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो कितना हो जाएगा, एंगल फॉर्म्ड एट सेंटर बाय इंटायर सर्कमफ्रेंस। तो पूरी सर्कमफ्रेंस जो सर्कल पे, तो पूरी सर्कमफ्रेंस जो सेंटर पे एंगल बनाएगी वो कितना हो जाएगा, 2 pi। सिंपली सी बात है, अगर 1 यूनिट मेरी आर्क है और रेडियस 1 यूनिट है, तो मेरे सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है, 1 रेडियन का। अगर यही सेम मैं ये सर्कल लूँ, यहाँ पे मेरी रेडियस 1 यूनिट ही है, बट आर्क लेट से मैंने अब 2 यूनिट ले ली, ठीक है। मेरी आर्क की लेंथ अगर 2 यूनिट है, तो ये जो एंगल फॉर्म्ड होगा ये हो जाएगा 2 रेडियन, ठीक है। सिमिलरली जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे, अगर ये मेरा सर्कल है, ये सेंटर है, दिस रेडियस इज 1 यूनिट, और अब जो मैंने आर्क ली है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ली है, ठीक है। और लेट्स से इस आर्क की यूनिट 1 यूनिट है, तो यहाँ पे इस सिचुएशन में जो मेरा एंगल फॉर्म होगा, दिस इज -1 रेडियन, ठीक है। जैसे मैंने वहाँ सिंपल एंगल में बताया था कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो एंगल पॉजिटिव रहता है, और अगर हम क्लॉकवाइज मूव करें तो एंगल नेगेटिव रहता है। अगर मेरा यूनिट रेडियस का सर्कल है, तो जो मेरे आर्क की लेंथ होगी वही मेरा एंगल होगा, ठीक है। अगर मैंने 2 यूनिट आर्क लिए तो मेरा एंगल भी 2 रेडियन होगा। तो जो पूरी सर्कमफ्रेंस है सर्कल की, जो कि 2 pi है, वो कितना एंगल बनाएगी यहाँ पे, 2 pi। तो हमने देखा, जब हम डिग्री के टर्म में बात कर रहे थे, तो अगर हम पूरे एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे वो कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है 360 डिग्री का। और जब हम रेडियन के टर्म्स में बात करते हैं, तो जो कंप्लीट रेवोल्यूशन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 2 pi का। तो ये हमें एक तरीके से रिलेशन मिल जाता है डिग्री में और रेडियन में। डिग्री में कंप्लीट रेवोल्यूशन है 360 डिग्री का, रेडियन में कंप्लीट रेवोल्यूशन है 2 pi का। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं, तो आई विल गेट पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो दिस इज कॉल्ड relation between, this is my relation between radian and degree, ठीक है। तो जो आपको मेजर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिलेंगी, तो या तो आपको एंगल डिग्री में दे दिया होता है और वो पूछते हैं कि आपको रेडियन में इसको कन्वर्ट करना है, या फिर रेडियन में दिया होता है वो आपको कहते हैं कि डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो हम कैसे करते हैं, सिंपल, बस आपको ये रिलेशन याद रखना है कि 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 pi। तो हमारा सिंपल रिलेशन था 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 pi। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे डिग्री का तो ये सिंबल हो गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे आइडियली होना चाहिए 2 pi रेडियन, बट जनरली हम रेडियन लिखते नहीं है। अगर पाई की टर्म में एंगल दिया तो वो अंडरस्टूड है कि वो एंगल की जो यूनिट है वो रेडियन है, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो विल गेट पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये मेरा रिलेशन है जो आपको हमेशा याद रखना है। अब अगर आपको एंगल रेडियन में दिया है और आपको डिग्री में पूछा है, ठीक है, मान लो
आपको एंगल दिया हुआ है 5 रेडियन और वो कह रहा है कि इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो मुझे यहाँ से रिलेशन निकालना है। मेरा पाई रेडियन है वो इक्वल्स टू है 180 डिग्री के, तो अगर मुझे 1 रेडियन निकालना होगा तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा मेरा 180 बाय पाई। तो अगर 5 रेडियन पूछा जाएगा तो 5 रेडियन हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 5, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको अपोजिट दिया है, अगर मान लो एंगल आपको दिया है 75 डिग्री और वो आपको पूछ रहा है कन्वर्ट दिस इनटू रेडियन, ठीक है। तो व्हाट विल यू डू, रिलेशन याद रखना है, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पाई के बराबर होता है, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा पाई बाय 180 डिग्री। सो 75 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 इंटू 75, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर रेडियन दिया है तो हम डिग्री में चेंज कर सकते हैं और डिग्री दी है तो हम रेडियन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करनी है वो जब मैं आगे आके क्वेश्चन डिस्कस करूंगी तो वहाँ पे हम क्लियर कर लेंगे। अभी आई एम जस्ट गिविंग यू अ बेसिक आइडिया कि किस तरीके से फॉर्मूले को हमें यूज़ करना है। नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमें डिस्कस करना है वो है रिलेशन बिटवीन आर्क, रेडियस एंड एंगल, ठीक है। अभी जब हम रेडियन डिफाइन कर रहे थे तो हमने इस तरीके से डिफाइन किया था, ये सर्कल है, ये मेरा सेंटर है। वहाँ पे मैंने रेडियस कंसीडर करी थी यूनिट, 1 यूनिट। अब मैं यहाँ पे कंसीडर कर रही हूँ कि आर है मेरी रेडियस, ठीक है। और जो मैंने आर कंसीडर करी ए बी, तो लेट से इसकी लेंथ है एल और ये एंगल बना रही है यहाँ पे थीटा। तो आपको पूछा है कि रिलेशन क्या होता है इन तीनों में। तो रिलेशन हमारा क्या होता है, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है। ये हमारा रिलेशन होता है जो आपको याद रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू एल डिवाइडेड बाय आर, और इसको आप सिंपली याद कर सकते हो एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन है जिसको आपको हमेशा याद रखना है। और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है कि ये जो थीटा है इसकी यूनिट होती है रेडियन, ठीक है। लेट से आपको क्वेश्चन कुछ दे दिया, मान लो आपको एल और आर की वैल्यू दे दी है एंड दे आर आस्किंग अबाउट कि भाई फाइंड आउट थीटा इन टर्म्स ऑफ डिग्री, ठीक है। तो आपको जो इस फॉर्मूले से जो थीटा मिलेगा वो हमेशा आपको रेडियन में मिलेगा, तो उसको हमें फिर बाद में डिग्री में चेंज करना होगा। या कहीं पे थीटा आपको डिग्री में दिया हुआ है और अगर आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन, देन यू कैन ओनली यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक हो गया। नेक्स्ट हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। पहले सिंपल कन्वर्जन प्रॉब्लम्स देखते हैं जो अभी मैंने डिस्कस करी थी। सो फर्स्ट मेरी प्रॉब्लम है, आपको रेडियन में दिया है एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री, ठीक है। तो लेट्स से मेरा क्वेश्चन है 41 डिग्री एंड 30 मिनट्स, ठीक है। ये मेरा एंगल दिया हुआ है, ये थीटा की वैल्यू है और हमें बोला गया है कि कन्वर्ट दिस इनटू रेडियन, ठीक। डिग्री में दिया है, रेडियन में बदलना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिग्री भी है और मिनट्स भी हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसको पूरे को डिग्री में चेंज कर लेती हूँ, फिर हम रेडियन में बात करेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा था, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। तो यहाँ से 1 मिनट कितना हो जाएगा 1/60 डिग्री, और हमें क्या दिया है 30 मिनट्स, तो ये कितना हो जाएगा 30/60, डैट मीन्स हाफ डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री में 60 मिनट था तो 30 मिनट में हाफ डिग्री होगा। तो ये मेरा एंगल क्या हो जाएगा 41 डिग्री प्लस हाफ डिग्री, तो दिस विल बी सिंपली 83/2 डिग्री। तो इस पूरे एंगल को मैंने डिग्री में चेंज कर दिया। अब मुझे इसको रेडियन में चेंज करना है, तो कुछ नहीं, आपको सिंपल फॉर्मूला याद रखना है। हमारा फॉर्मूला क्या है, पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई है, तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा पाई बाय 180 डिग्री। तो हमारा 83/2 डिग्री कितना होगा पाई बाय 180 इंटू 83/2। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें रेडियन में निकालना है तो पाई की वैल्यू लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस आप सिंपली सॉल्व कर दोगे
तो जो भी आपकी कैलकुलेशन आएगी इसे करने के बाद, तो ये आपका आंसर हो जाएगा थीटा रेडियन। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रही क्योंकि सिंपल प्लस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई है जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये मेरा आंसर हो गया इन रेडियन। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स से थीटा है मेरा -25 डिग्री। ठीक है, अब इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, अगेन रेडियन में करना है। सेम फॉर्मूला लगेगा, पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हमें याद रखना है। सो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाय 180। सो -25 डिग्री कितना हो जाएगा, -पाई बाय 180 इंटू 25। सो आप इसको सॉल्व कर लोगे, तो ये आपको मिल जाएगा -5/36 पाई एंड रेडियन। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, दिस इज द ओनली। सो अब आपको इसका रिवर्स दिया होगा, मतलब अब आपको एंगल जो है रेडियन में दिया है, नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री। तो मान लो मेरा फर्स्ट है, एंगल इज 11/16, दिस इज इन रेडियन एंड आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री। ठीक है, अब इसमें कैसे करेंगे, सेम फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो दिस पाई मीन्स दिस इज पाई रेडियन। ठीक है, तो पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, हमें कितना निकालना है, 11/16 रेडियन। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 11/16। ठीक है, अब मुझे सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में यूजुअली आपको पाई की वैल्यू यूज़ करनी होती है 22/7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 22/7 इंटू 11/16। तो अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, जैसे नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं, ये आपका 2 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90 टाइम्स, ये 2 8 16, 2 4 8, ये आपका 45 टाइम्स हो गया। ठीक है, ये 7 हमारा ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा 45 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, सो इसको आप सॉल्व करोगे, दिस विल बिकम 35 एंड 31 दिस। तो ये आ रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको डिवाइड करना है। ये थोड़ा सा है पार्ट जो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि इसको आप कैसे करोगे। अब मैं 315 को 8 से डिवाइड कर रही हूँ। सो ये जाएगा आपका 3 टाइम्स, 3 8 24। ठीक है, ये हो गया आपका 75 हो गया। तो 75 कितना जाएगा, 9 8 72। तो क्या बचेगा, 3। अब देखो, आप इसको 8 से डिवाइड कर रहे थे, अब यहाँ पे रिमाइंडर 3 बचा है। ठीक है, तो मैंने 39 तो डिग्री बना दिया, अब 3 तो 8 से जाएगा नहीं। अब मेरे पास बचा है 3 डिग्री। तो 3 डिग्री को अगर मैं मिनट में चेंज करूँगी तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 60 मिनट, क्योंकि हमने पढ़ा था 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। तो ये कितना हो जाएगा आपका 180 मिनट्स हो गया। ठीक है, अब 180 को आपको डिवाइड करना है किससे, 8 से। तो ये देखो मिनट्स में कितना आएगा, 8 2 16, 20 बचेगा, 8 2 16, हाँ 20 बचेगा। तो ये हो गया आपका अगेन 8 2 16, फिर बचेगा 4। अब 4 तो 8 से जाएगा नहीं, तो ये हो गए मेरे मिनट्स। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा है, 4 मिनट बचे हैं। अब इस 4 मिनट को अगेन मैं सेकेंड्स में कन्वर्ट करूंगी। तो मेरे पास फॉर्मूला था कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो 4 कितने हो जाएंगे, 4 मिनट, ये हो जाएंगे 240 सेकेंड्स। तो अब आप इस 240 सेकेंड्स को 8 से डिवाइड करोगे, तो ये हो जाएगा 3 8 24 और ये 0, तो 30 सेकेंड्स। तो ये मेरा इसका फाइनल आंसर आएगा। तो बस इसमें ये थोड़ा सा पार्ट है जिसको आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से हमें डिवाइड करना है। तो पहले जैसे नॉर्मल हम डिवाइड करते हैं वो डिवाइड करेंगे, फिर जो भी रिमाइंडर बचेगा, जैसे ये मेरा पूरा डिग्री था, तो डिग्री में मेरा रिमाइंडर बचा था 3, तो उसको मैं चेंज कर लूँगी मिनट्स में। ठीक है, फिर मिनट में जो है आप उसको डिवाइड कराओगे जैसे नॉर्मल डिवाइड कराते हैं, फिर जो रिमाइंडर बचेगा उसको आप कन्वर्ट कर लोगे सेकंड में,
और फिर उसको डिवाइड करोगे। अब यहाँ पे सेकंड्स तो मेरे पूरे पूरे डिवाइड हो गए थे। अगर इन केस कोई ऐसी कैलकुलेशन होती है जहाँ पे सेकंड पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहे, तो फिर वहाँ पे आप एक राउंड ऑफ वैल्यू लिख दोगे जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा लास्ट की कैलकुलेशन है, बाकी सिंपल फॉर्मूला है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो अब यहाँ पे मैंने कंसीडर करा है -5 रेडियन, ठीक है। इसको मुझे चेंज करना है डिग्री में। सेम फॉर्मूला यूज करना है, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाय पाई डिग्री। मुझे क्या निकालना है, -5 रेडियन। तो ये हो जाएगा 180 बाय पाई इंटू -5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया 180 माइनस में आएगा इंटू 5 और पाई की जगह लगाएंगे 22/7। तो ये हो जाएगा 2 11 टाइम्स जाएगा, ये हो गया 90। तो ये बेसिकली हो गया माइनस का 90 इंटू 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा 5 9 450 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 11। तो ये हो गया -7 0 0 35 3150 बाय 11, ठीक है। ये मेरा इतना डिग्री में आ गया। अब अगेन इसको हमें डिवाइड करना है, तो देखते हैं इसको आप कैसे करोगे। माइनस तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये 31 है, तो ये जाएगा 11 2 22, तो यू विल गेट रिमाइंडर 9, ठीक है। 95 हो गया, तो 95 है तो 8 टाइम्स जाएगा 88, तो यू विल गेट रिमाइंडर 7। अभी हो जाएगा 70, तो 11 6 66, तो यू विल गेट रिमाइंडर 4। तो अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा है, रिमाइंडर बचा है 4 डिग्री। 4 डिग्री इज नॉट डिविजिबल बाय 11, तो व्हाट वी डू, वी कन्वर्ट दिस 4 डिग्री इनटू मिनट्स। तो आप उसको 60 से मल्टीप्लाई कराओगे तो इट विल बिकम 240 मिनट्स। तो ये इतना मेरा डिग्री आ गया। अब 240 मिनट्स को यू हैव टू डिवाइड बाय 11। तो ये हो जाएगा 11 2 22, 2 रिमाइंडर बचेगा 20, तो 11 1 11, तो रिमाइंडर बचेगा 9। तो ये हो गया इतना मिनट्स, ठीक है। अब मेरे पास 9 मिनट्स बचे हैं, इसको मुझे डिवाइड करना है 11 से। तो ये 11 से डिविजिबल नहीं है। अगेन मैं इसको सेकंड में चेंज करूंगी, तो 9 6 56, तो ये मेरा हो गया 560 बाय 11। सॉरी दिस इज 540, ठीक है। अब मुझे इसे 11 से डिवाइड कराना है, तो 11 4 44 जाएगा, यहाँ से बचेगा 10, तो ये हो गया 100। अब अगेन 100 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये मेरा चला जाएगा 9 टाइम्स, तो 99, कुछ 1 बचेगा रिमाइंडर, तो उसको हम छोड़ सकते हैं। तो ये मेरा एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गई, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा वो पूरा डिवाइड हो गया था, बट ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो अब हम इसको आगे तक नहीं स्ट्रेच करेंगे। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप ये डिवाइड सबको समझ में आ रहा होगा। सिंपल डिवाइड है, बस जो रिमाइंडर बचता है उसको कन्वर्ट करते जाना है, डिग्री को मिनट्स में एंड मिनट्स को सेकंड में, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया फ्रॉम रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हमें देखनी है, डेट आर बेस्ड ऑन डेट फॉर्मूला L इक्वल्स टू R थीटा, जो अभी हमने देखा था। सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, बट थोड़ा सा आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है। जैसे एक फर्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी बुक में दिया है NCERT में, एक आपको सर्कल गिवन है whose diameter is 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एक सर्कल है, ये इसकी डायामीटर है विच इज गिवन एज 40 सेंटीमीटर, और एक इसमें आपको कॉर्ड दी हुई है, लेट्स से मैंने इसका नाम रख दिया CD, और इस कॉर्ड की आपको लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो वो क्या आपसे पूछना चाह रहे हैं, इस कॉर्ड की जो ये माइनर आर्क है, ये वाली माइनर आर्क है, इसकी आपसे लेंथ पूछी है, ठीक है। तो सिंपल है, अगर मैं इसको सेंटर से ज्वाइन कर दूं, ये मेरा सेंटर है O, ठीक। अब यहाँ पे OD और OC क्या है, रेडियस है इसकी। अब डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस मेरी 20 सेंटीमीटर होगी,
तो ये भी 20 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में ये जो मेरा ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल OCD, ठीक है, इसकी तीनों साइड्स 20 सेंटीमीटर है, सेम लेंथ की है, तो ये कैसा ट्राइंगल हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, दिस इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल। और हम सबको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल कितना होता है, तीनों एंगल का मेजर कितना होता है? 60 डिग्री। ठीक है, अब 60 डिग्री को अगर मुझे रेडियन में चेंज करना है तो ये रेडियन में हो जाता है आपका π/3। ठीक है, ये होता है π/3 रेडियन। ठीक है, सिंपल डिग्री से आपको रेडियन में चेंज करना है तो 60 डिग्री कितना होता है मेरा? π/3 रेडियन होता है। तो यहाँ सारे एंगल्स कितने हो जाएंगे? π/3 के। ये π/3 है, ये π/3 है और ये भी π/3 है। तो अब मुझसे ये आर्क पूछिए, अगर मैं इस आर्क की लेंथ L सपोज कर लूँ तो मैं यहाँ पे सिंपल अपना फॉर्मूला लगा सकती हूँ, L = r θ। ठीक है, रेडियस आपको 20 गिवन है, थीटा आपने π/3 निकाल लिया, तो L कितनी हो जाएगी आपकी? 20 π/3, ये सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मेरा हो गया आंसर। सिंपल है, बस फॉर्मूला यूज करना है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे थोड़े से आपको एंगल्स जो हैं वो याद रहने चाहिए, डिग्री और रेडियन में जो स्टैंडर्ड है, जो यूज होते हैं। जैसे 0 तो दोनों में ही 0 है, थर्टी डिग्री को हम यहाँ लिखते हैं π/6। ठीक है, आपका 45 डिग्री होता है π/4, 60 डिग्री होता है π/3, 90 डिग्री होता है π/2, 180 डिग्री तो है ही पाई, और 360 डिग्री होता है 2 पाई। तो ये कुछ स्टैंडर्ड है जो सबको वैसे ही मतलब याद होने चाहिए, जिसमें कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट ना हो और आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकें। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट दे आर आस्किंग, वो कह रहे हैं कि ये जो आर्क की लेंथ है उससे सेंटर पे जो एंगल बन रहा है आपको वो एंगल एवेल्युएट करना है। ठीक है, बट उन्होंने क्वेश्चन में क्या मेंशन करा है कि वो एंगल की यूनिट क्या होनी चाहिए? डिग्री होनी चाहिए। ठीक, तो अभी मैंने आपको सॉल्व करते टाइम बताया था फॉर्मूले के टाइम पे कि जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं L = r θ, तो उसमें थीटा हमारा रेडियन में आता है। तो उसको हमें पहले हम सॉल्व करेंगे L = r θ से। तो यहाँ पे मेरा थीटा हो जाएगा L / r, तो विच इज इक्वल्स टू 15 / 100। ये हो जाएगा 5 3 बेसिकली 3/20। तो ये 3/20 मुझे मिला है रेडियन में। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में डिग्री में पूछ रहा है। ठीक है, तो हाउ विल यू इवेलुएट? तो सिंपल अभी तक जो हम यूज कर रहे थे, π = 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय पाई, तो 3/20 रेडियन कितना हो जाएगा? 180 डिग्री बाय पाई इंटू 3/20। तो इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो गया 27 और ये हो जाएगा आपका 22/7। तो 7 7 ज़ा 189 डिवाइडेड बाय 22। ठीक है, तो ये मेरा आ गया है डिग्री में। इसको आप आगे करके सॉल्व कर दोगे डिवाइड में, तो आपको एग्जैक्ट अपना एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बस यहाँ पे जो मेजर ट्रिक थी इस क्वेश्चन में वो ये थी कि अगर आप ध्यान ना दो और आप सीधा बस यहाँ से जो थीटा आ जाएगा उसको आप निकाल के दिखा दोगे तो वो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, जब भी हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा थीटा है वो हमेशा रेडियन में है। ठीक, एक और लास्ट क्वेश्चन हमें कंसीडर करना है इस वीडियो में, वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
क्वेश्चन में आपको 2 सर्कल गिवन है, ठीक है, 2 सर्कल गिवन है, एक फर्स्ट सर्कल और एक सेकंड सर्कल। सो फर्स्ट सर्कल में आपको थीटा की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री, थीटा 1, और थीटा 2 आपको गिवन है 75 डिग्री। लेंथ ऑफ आर्क दोनों के लिए क्वेश्चन में बोला है कि सेम है। सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, R1 रेशियो R2, यानी दोनों की रेडियस का हमें रेशियो निकालना है, ठीक है। तो देखेंगे हम कैसे निकालेंगे। अब क्वेश्चन में एंगल जो आपको किस में गिवन है, डिग्री में गिवन है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करने से पहले हमें डिग्री वाले एंगल को रेडियन में चेंज करना होगा। तो अभी हमने देखा था 60 डिग्री को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। 60 डिग्री क्या होता है आपका π/3 रेडियन, और 75 क्या होता है, ये हो जाएगा 75 इंटू π/180, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा 5/12 पाई। सो दिस इज 5/12 पाई। सिंपल, हमने उसको डिग्री को रेडियन में चेंज करा है, ठीक है। अब मुझे फॉर्मूला लगाना है। सो L1 कितना हो जाएगा, R1 थीटा 1, और L2 कितना हो जाएगा, R2 थीटा 2, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, L1 इज इक्वल्स टू L2, ये मुझे गिवन है। तो यहाँ से मैं दोनों की वैल्यूज लगा सकती हूँ। ये हो जाएगा R1 थीटा 1 इक्वल्स टू R2 थीटा 2। तो मुझे क्या पूछा है, R1 डिवाइडेड बाय R2 पूछा है, दैट विल बी इक्वल्स टू थीटा 2 डिवाइडेड बाय थीटा 1। सो दोनों की वैल्यूज लगा दो। थीटा 2 इज 5/12 पाई एंड दिस इज 1/3 पाई। तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये आपका 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या मिला 5/4। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, R1 रेशियो R2 इज इक्वल्स टू 5/4। सो इस एक्सरसाइज में जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, वहाँ पे सिर्फ आपके 3 काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वन है आपका रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन, फिर है डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, और नेक्स्ट है ये आपके L इक्वल्स टू R थीटा पे बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये मैंने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप ये आप सबको समझ में आए होंगे। In the next video, we are going to discuss about the trigonometric functions. Thank you so much.